आप Uh, अपना इंट्रोडक्शन, डॉक्टर अपना सर मैं इंट्रोडक्शन करा दें। करती हूँ, शुड आई जी जी। स्टार्ट या फिर डॉक्टर आमना से के थ्रू शुरू कर लें? नहीं, आप स्टार्ट कर दो, मेरे ख्याल में ब्रीफली आप चलिए, बता दो, मैं start। ठीक है। माय नेम इज किरण आमिर एंड आई एम द डायरेक्टर ऑपरेशंस एट पारसा echo pakistan super hub. I would like to welcome you all to another echo session in series of hepatitis echo. It's in collaboration with Pakistan Society of Hepatology. Today's session is case-based discussion with and our expert for tonight is Professor retired Altaf Alam. Before I introduce you to our expert for tonight's session, we have to go through some standard announcements. We are part of a global movement called Project Echo based in USA with an objective to disseminate knowledge and best practices. We do protect patient privacy, so none of the information used in this session will identify any individual or patient. For maintaining discipline, you all are muted, but we encourage participation. You can unmute yourself for questions or use the raised hand option on chat box. By participating, you have given the consent for recording, and the recorded session will be available on our YouTube channel. Link will be shared in chat box. For CME credits, please contact Uzair, our coordinator. His number is mentioned on the banner. CME credits are affiliated with Jinnah Sindh Medical University. Uzair will share the Google form at the end of the session, which will be active for 12 hours. You are requested to fill it as soon as possible to avail the opportunity of CMEs. For the convenience of folks, the session is bilingual. Please speak in English, Urdu, whatever language you are comfortable in. If you are interested in our publication, please fill the form shared by Uzair in the end of the session. Our expert for tonight's session is Professor retired Altaf Alam, is a former professor and head of gastroenterology, hepatology department at Sheikh Zayed Postgraduate Medical Institute, Sheikh Khalifa bin Zayed Al Nahyan Medical Dental College, Lahore, Pakistan. He is serving as course director of PARSA ECHO Pakistan since the beginning. He is responsible for developing curriculum, observing quality of content, evaluating speakers, and feedback evaluation. Currently, he is a consultant gastroenterologist, hepatologist at Evercare Hospital, Lahore. We have two cases today. Dr. Amna will present the first case, and Dr. Michelle will present the second case. So I will hand over to Dr. Amna. Dr. Amna? Yes, Assalamu alaikum. Can you hear me? Yes, I can. Okay. Case number one, 26 years old female, recently diagnosed with acute hepatitis in September 2023, presented in OPD with complaint of abdominal pain, nausea, and vomiting for 2 months. She has been on tenofovir for 3 weeks, started by another physician. She had a C-section 3 months back, currently not breastfeeding, no history of itching. Further workup was done. Examination was abdomen was soft, non-tender. Family history is non-significant. Investigations done in September. HP was 12.9. Now in October 13.7. TLC count was 6.3. Now 7.2. Platelet counts were 177 followed by 238. Creatinine 0.7, bilirubin was 5.0, followed by 9.1, 3.8, and 1.5. Recently, ALT was 1986, followed by 1980, 1129, and 115. AST was 1445, followed by 2170, 825, 852, and 57. Alkaline phosphatase was 1095, followed by 753, 170, and 98 in October 13. GGT was 132, now 51. Albumin 3.3, followed by 4.0 and 4.1. Random sugar documented in September 106, PT-INR 11/1.0. Workup for hepatitis B revealed that HBe antigen was positive in September, followed by anti-HBe also was positive, anti-HTV was negative, anti-HIV screening was negative, anti-HCV was negative, anti-HPC IgM was positive in September. Anti-HAV IgG was also positive. Anti-HAV IgM were negative. Anti-HEV IgM was negative.
Ultrasound abdomen shows liver was normal. Calculus, polycystitis, and splenomegaly is present. Questions are: what other investigations are required? Should we continue ABT? How should we follow up this patient? Thank you, Amna. Dr. Altaf, basically, it's an acute hepatitis B case जो कि अब हमारे पास आए हैं और already on tenofovir alafenamide. तो अब क्वेश्चन ये है कि ये तकरीबन 1 महीने की सारी प्रोग्रेस है. तो आपसे हम राय ये चाहेंगे कि ये दवाई ना भी दी जाती तो क्या होता. अब चूंकि दी जा रही है, अब क्या होगा. तो इसको थोड़ा सा काइंडली जरा जो इसके ऊपर अब आपसे हमें एक्सपर्ट ओपिनियन चाहिए. थैंक यू. थैंक यू. जी असद, जैसे आपने बताया, दिस इज अ क्लियर कट केस ऑफ एक्यूट हेपेटाइटिस बी. और जो क्वेश्चन नंबर 1 है कि व्हाट अदर इन्वेस्टिगेशंस आर नीडेड, तो मैं कहूँगा ये ऑलरेडी ओवर इन्वेस्टिगेटेड है. एक्यूट हेपेटाइटिस बी में 2 टेस्ट की जरूरत होती है, सरफेस एंटीजन एंड एंटी-एचबीसी IgM. If they are positive, a diagnosis of acute hepatitis can be made confidently. जब भी B पॉजिटिव हो तो डेल्टा वायरस का चेक करना लाजमी है. सो anti-HDV जरूरी था, लेकिन E एंटीजन, anti-HBE और HBV DNA का कोई रोल नहीं था. ऑफ कोर्स A और E बहुत कॉमन है, और A एंड E IgM जरूर कर लेना चाहिए कि ये कोई और इन्फेक्शन A या E की तो नहीं है. सो surface antigen positive, anti-HBC IgM positive, this is a clear cut case of acute hepatitis B. AE negative है, delta negative है, C negative है. But anti-HCV is not a test of acute hepatitis C. अगर आपने कुछ चेक करना है, अगर सब कुछ नेगेटिव आ जाता तो चेक करना है, तो HCV RNA by PCR चेक करेंगे, क्योंकि anti-HCV को पॉजिटिव होने में चंद हफ्ते लगते हैं, मे बी 6 to 12 weeks at least. तो क्वेश्चन यही है कि इसको ऑलरेडी किसी फिजिशियन ने इलाज किया था, आया करना चाहिए था या नहीं. तो अभी ये बात क्लियर है, और ये गाइडलाइंस ने भी क्लियरली लिखी हुई है कि एक्यूट हेपेटाइटिस में किसको ट्रीट करना है. सो एक्यूट हेपेटाइटिस में उस पेशेंट को ट्रीट करना है जो एक्यूट सिवियर एंड प्रोलॉन्ग्ड कोर्स हो. अब इनकी डेफिनेशंस क्या है सिवियर की? सिवियर की ये है कि बिलिरुबिन मोर देन 20, INR मोर देन 1.5, patient having confusion and going into encephalopathy or already in encephalopathy, but then it is too late to start treatment, or INR more than 1.5. और जो इन टर्म्स ऑफ ड्यूरेशन ऑफ इलनेस है, जैसे मैंने कहा कि सिवियर प्रोलॉन्ग्ड, तो प्रोलॉन्ग्ड की डेफिनेशन क्या है? मोर देन 4 weeks. सिम्टम्स या जॉन्डिस, मोर देन 4 weeks यू स्टार्ट ट्रीटमेंट. सो मेरे ख्याल में तो इस पेशेंट को कोई इलाज की जरूरत नहीं थी अकॉर्डिंग टू द गाइडलाइंस, क्योंकि इसमें ये कोई फीचर नहीं था. INR नॉर्मल, बिलिरुबिन मैक्सिमम 9 पे गई है, और ड्यूरेशन ऑफ इलनेस इज अब तकरीबन 6 weeks to 8 weeks की हो गई है, लेकिन एज यू कैन सी वो तो इम्प्रूव होना शुरू हो गई थी. तो एक्यूट हेपेटाइटिस बी में यही होता है कि 95% एडल्ट्स रिकवर स्पॉन्टेनियसली विदाउट एनी ट्रीटमेंट, और सिर्फ 5% क्रॉनिसिटी में जाते हैं, और fulminant hepatic failure is uncommon and it is less than 1%. So इस particular case में इलाज की कोई इंडिकेशंस पूरी नहीं होती. अगर आपने इलाज करना है और पेशेंट रिक्वायरमेंट्स को पूरी करता है तो क्या देंगे? एंटीकविर देंगे, टेनोफोविर डाइसोप्रोक्सिल फ्यूमरेट देंगे, या टेनोफोविर एलाफिनामाइड देंगे. सो
अगेन इसमें गाइडलाइंस बड़ी क्लियर हैं कि आपको एंटिकावेर या टेनोफोवेर डाइसोप्रोक्सिल फ्यूमरेट देनी चाहिए. टैफ या टेनोफोवेर एलाफिनामाइड probably works equally well, लेकिन अभी तक इसका डेटा नहीं है यानी acute hepatitis. So FDA approved indication acute hepatitis, acute severe hepatitis B के इलाज में टैफ अभी इंक्लूड नहीं किया गया, लेकिन आई एम श्योर कि फ्यूचर में कर देंगे. असद ने जो क्वेश्चन किया कि आप ऑलरेडी ट्रीटमेंट पे है, शुड बी स्टॉप, द आंसर इज बिग नो विद कैपिटल एन. उसकी वजह क्या है कि अगर अभी हम इलाज रोकते हैं तो 20 to 25% मरीज फ्लेयर में जाएंगे, और इस पेशेंट का फ्लेयर क्या होगा, दोबारा जॉन्डिस एंड मे बी सीवियर हेपेटाइटिस, और जो पहले नहीं हुआ वो अब हेपेटिक फेलियर में जा सकती है. सो अभी आप ट्रीटमेंट बंद नहीं करेंगे, चाहे गलत शुरू की चाहे सही शुरू की. बंद कब करेंगे वो भी बड़ी क्लियर कट इंडिकेशन है कि जब सरफेस एंटीजन नेगेटिव हो जाए, जो आमतौर पे 6 महीने में हो जाता है. सो 6 महीने का इलाज दें, सरफेस एंटीजन नेगेटिव हो जाए, और प्रेफरेबली एंटी-एचबीएस अपीयर हो जाए. वो ना भी हो तो 6 महीने में अगर सरफेस एंटीजन डिसअपीयर हो गई है तो यू कैन स्टॉप ट्रीटमेंट. सो इन अ नटशेल ये ऑलरेडी ओवर इन्वेस्टिगेटेड केस है, इसमें कोई फर्दर इन्वेस्टिगेशन की जरूरत नहीं है. बी सरफेस एंटीजन, एंटी-एचपीसी आईजीएम और एंटी-एचडीवी डायग्नोसिस के लिए काफी थे. ट्रीटमेंट शुरू नहीं होनी चाहिए थी, लेकिन अब हो गई है, तो प्लीज ऐसे केसेस में ट्रीटमेंट बंद ना करें, और उस वक्त बंद करें जब सरफेस एंटीजन नेगेटिव हो जाए, जो यूजुअली 6 मंथ्स पे होता है. कौन सी ट्रीटमेंट जो इन FDA अप्रूव्ड थेरेपीज हैं वो एंटिकावेर और टेनोफोवेर डाइसोप्रोक्सिल है, टैफ नहीं है. लेकिन अगर स्टार्ट कर दिया तो मैं इसको कभी बंद नहीं करूंगा और ना ही चेंज करूंगा, क्योंकि कोई फर्क नहीं पड़ता. इट वर्क्स इक्वली वेल ऑल्दो ये अप्रूव्ड ट्रीटमेंट नहीं है. सो और कोई क्वेश्चन था इसमें कि यही था कि इन्वेस्टिगेशंस शुड बी कंटिन्यू. यस, हाउ शुड वी फॉलो अप, आप जैसे फॉलो कर रहे हैं LFTs और INR, सिर्फ यही करके देखने की जरूरत है. और जब 6 महीने पूरे हों तो सरफेस एंटीजन बार बार चेक करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इट टेक्स ऑलमोस्ट 6 मंथ्स फॉर सरफेस एंटीजन टू बिकम नेगेटिव. सो फॉलो करें LFTs और INR से, 6 महीने पर सरफेस एंटीजन चेक करें, वो नेगेटिव है तो इलाज रोक दें. अल्ट्रासाउंड में जिक्र किया गया है ए कैलकुलस कोलिसिस्टाइटिस. ये एक्चुअली ए कैलकुलस कोलिसिस्टाइटिस नहीं है. एक्यूट हेपेटाइटिस में अडीमा ऑफ द गॉल ब्लैडर वॉल होता है, जो कि इन्होंने मेंशन किया है कि ए कैलकुलस कोलिसिस्टाइटिस है. उसमें भी यही होता है, वॉल थिकनिंग होती है, लेकिन ये वॉल थिकनिंग अडीमा ऑफ द गॉल ब्लैडर वॉल की वजह से है. और स्प्लेनोमेगली क्रॉनिक लिवर डिजीज को इंडिकेट नहीं करती. Splenomegaly is quite common in acute hepatitis, particularly in young people, particularly बच्चों में. Even ascites can appear. These things do not indicate chronic liver disease. It can happen in up to 20 to 25% of patients, young patients with acute hepatitis. So, in 3 questions के तो आंसर कर दी. Of course, there will be some ambiguity या questions या comments, so I would welcome that, and the case is open for discussion. So anyone has any comment or any question, so feel free to ask me, or we can discuss. Thank you. सर एक चीज, अगर कोई और क्वेश्चन है, एक चीज जरा आप क्लैरिफाई कर दें कि मैं इसमें देख रहा हूँ कि हर हफ्ते LFT हो रहे हैं, तो आई मीन हाउ वुड यू, मतलब ये बड़ा जरूरी है कि ये भी समझें कि हाउ सून और इंटरवल कितना होना चाहिए, और आप अपनी प्रैक्टिस में कैसे करते हैं एक्यूट हेपेटाइटिस के फॉलोअप में, बी इट एनी कॉज, बी है, ए है, ई है. जी प्लीज. जी, जब तक अपवर्ड ट्रेंड है आई यूजुअली डू इट एवरी वीक. जब वो डाउनवर्ड ट्रेंड शुरू हो जाता है तो आई मेक इट 2 वीक्स. और अक्सर जब सेटिस्फैक्ट्री
कंटिन्यूअस डाउनवर्ड ट्रेंड हो, तो आई आस्क देम कि अब बिलिरुबिन, जैसे अब इसकी आखिरी बिलिरुबिन 1.5 है, ALT 77 है, तो इस पे तो एक आदमी जो काम कर रहा है वो नॉर्मल काम पे जा सकता है और अपनी तसल्ली के लिए 1 माह के बाद LFTs रिपीट कर ले, ताकि वो श्योर हो जाए कि वो नेगेटिव नॉर्मल हो गए हैं। और 6 महीने पे सरफेस एंटीजन, मैं अक्सर उनको बुलाता भी नहीं हूं जब इस तरह की वैल्यूज आ जाती है। मैं कहता हूँ 1 महीने के बाद खुद ही अपने LFTs देख लेना, अगर वो सेटिस्फैक्ट्री हैं या नॉर्मल हैं तो डोंट नीड टू कम बैक। हाँ, 6 महीने पर सरफेस एंटीजन और LFTs करा के मेरे पास आ जाए, ताकि मैं टैफ को, जो किसी ने शुरू कर दी है, उसको बंद करने के बारे में एडवाइस दे दूं। सो ये एवरी वीक until the upward trend, and then 2 weekly, जब सेटिस्फैक्ट्री डाउनवर्ड ट्रेंड सेटल हो जाए तो मे बी पेशेंट को ही इंचार्ज बना दें और उसे फारिग कर दें। इस पर्टिकुलर केस में 1 माह के बाद, 6 माह के बाद सरफेस एंटीजन और LFTs करा के मैं एक दफा जरूर देखूंगा इसको। ग्रेट। एक और जो इसी से एसोसिएटेड सवाल है, अक्सर जो क्लिनिकल प्रैक्टिस में होता है और पूछा भी जाता है कि हमारे पास, आई एम टॉकिंग इन सेटिंग ऑफ एक्यूट वायरल हेपेटाइटिस, ए है, ई है, वो जिस तरह इस सिनारियो में है। रेस्ट का पूछा जाता है, डाइट को तो हम बहुत दफा डिस्कस कर चुके हैं, और रिजम्पशन ऑफ वर्क या स्कूल वापस जाने का अक्सर होता है कि मेडिकल सर्टिफिकेट चाहिए। तो व्हाट इज द एविडेंस, इसके बारे में क्या है, या क्लिनिकल प्रैक्टिस में हम क्या करते हैं उसके बारे में? राइट। मेरी प्रैक्टिस तो ये है कि मैं 2 हफ्ते के लिए पहली विजिट पे ही मैं 2 हफ्ते का सर्टिफिकेट दे देता हूँ, अगर उन्हें जरूरत हो स्कूल का या काम का, क्योंकि 2 हफ्ते में पेशेंट बहुत अच्छा नहीं होता। उसके बाद आई मेक इंडिविजुअलाइज डिसीजन। इफ द पेशेंट इज डूइंग वेल, ही स्टेबल, डाउनवर्ड ट्रेंड शुरू हो गया है, तो दे कैन गो बैक टू वर्क और स्कूल। इवन ड्यूरिंग दीज 2 वीक्स अगर कोई इंपॉर्टेंट, बाज दफा इम्तिहान होता है बच्चों का, आमतौर पे यंग स्टूडेंट्स ही होते हैं, उनको कोई इम्तिहान होता है, तो मैं इजाजत देता हूँ कि नौजिया वॉमिटिंग ना हो, एक कोई 7 गोली रख लें और या खा के चले जाएं, एंड you can go for the exam. So generally just 2 weeks of rest, because it's very unpleasant कि वो काम पे जाके या स्कूल में उल्टियां कर रहा हो और पीला हो नजर आ रहा है लोगों को। तो इसकी वजह यही है, मेनली सोशल, बहुत ज्यादा मेडिकल इसमें नहीं है कि लाजमी है कि आप काम छोड़ के घर बैठ जाएं, लेकिन काफी सोशल इश्यूज हैं, इसलिए 2 वीक्स तो मैं डे 1 पे सबको सर्टिफिकेट दे देता हूँ अगर जरूरत हो, एंड देन आई टेक इट फ्रॉम देयर इंडिविजुअलाइज्ड। बट अगर बिलिरुबिन नियर नॉर्मल हो जाए, आई मीन के 1 to 3 की रेंज में है, तो फिर तो कोई किसी को भी घर बैठाने की जरूरत नहीं है, फिर आंखें भी साफ हो जाती हैं, काफी बेहतर हो जाती हैं, कोई ऐसा इशू भी नहीं होता, सिम्टम्स रिजॉल्व हो चुके होते हैं। सो देन yes, they can go back to work or school at that point in time. Any other question? हमारे पार्टिसिपेंट्स में से कोई अगर इस केस से रिलेटेड या कोई? Okay, fine. We are still available. Next case, आमना आप ही प्रेजेंट करोगी? और जी, डॉक्टर आमना will present the second case. Second case is a 49 years old male, non-case of hepatitis C since 2022. He started on AVT Dexoff in June 2022. He took a gap of 15 days in between the treatment but completed for 3 months. Now SVR is not achieved, dated 15/9/2023. Viral load is 38,380. No other comorbidity and active issue is an active issue. Investigations are HP was 12.2 in 2022, TLC 6.8, platelets were 212, creatinine 0.8, bilirubin 0.6, LFTs were
ALT 52, AST 43, alkaline phosphatase 223, albumin 4.2. Coagulation profile is not available. Random sugar was 141. Ultrasound abdomens not available. APRI score 0.5. Question: what treatment plan should we offer him now? Thank you, Amna. So basically, we have a Hep C case. He was, I can say, non-compliant or poorly compliant with the treatment, and on SOF and DECLA did not achieve SPR. So the question is about what to do next. Viral load is still 38,380. We don't have other tests from 2023, but presumably जो नजर आ रहा है वो ठीक ही होने चाहिए। जी डॉक्टर अल्ताफ सर। जी सबसे पहली बात तो ये है कि इस पेशेंट के साथ थोड़ी बैठ के बात करने की जरूरत है। ही इज अ नॉन कंप्लायंट पेशेंट। पिछली ट्रीटमेंट में इसने 2 हफ्ते छुट्टी कर दी दवाई की, और और नतीजा सामने है कि SPR अचीव नहीं हुआ। मैं ऐसे पर्टिकुलर या हर पेशेंट को जो हेपेटाइटिस सी का होता है, जो इस किस्म के टिपिकल टेस्ट के साथ आता है, उसको ये बात मैं जरूर बताता हूँ कि बड़ी आसान इलाज है। अब सक्सेस बहुत अच्छी है, लेकिन यू हैव टू बी कंप्लायंट। साथ ही कुछ इंपॉर्टेंट बातें करनी होती हैं कि जाती इस्तेमाल की वो तमाम चीजें जिस पे खून लग जाता है वो अलग रखें। मसलन तौलिया, टूथब्रश, रेजर, कंघी, नेल कटर, हेयर ब्रश। खून निकले उसको कोई आदमी हाथ ना लगाए, जख्म हो उसको कवर करके रखें। साथ रहने, साथ खाने, साथ सोने, साथ पीने से कुछ नहीं होता। ना कपड़े अलग, ना बर्तन अलग, ना बिस्तर अलग। मियाँ बीवी के ताल्लुकात के साथ ये वायरस एक दूसरे को लगने का चांस इतना कम है कि हम नॉर्मल ताल्लुकात की इजाज़त देते हैं। लेकिन जब आप इलाज ले रहे हो तो बच्चा पैदा करने की इजाज़त नहीं देंगे, क्योंकि अभी इस इलाज के टेरेटोजेनिक इफेक्ट्स बहुत क्लियर अभी भी नहीं है। सो इसीलिए प्रेगनेंसी में जनरली स्पीकिंग इलाज नहीं किया जाता। और अगर मेल भी इलाज ले रहा है तो उसमें भी हम यही कहते हैं कि आप इस दौरान मियाँ बीवी के ताल्लुकात तो रख सकते हैं, लेकिन बच्चा पैदा ना करें। और सबसे बड़ी बात यहाँ पर कि हेपेटाइटिस बी की वैक्सीन, हम ये भूल जाते हैं कि कम से कम पूछ तो लें मरीज को कि लगी है या नहीं लगी। अगर वैक्सीन नहीं लगी है, आइडियली तो anti-HBC और anti-HBS भी होना चाहिए उसके लिए। लेकिन अगर पेशेंट कहता है मुझे वैक्सीन नहीं लगी और सरफेस एंटीजन नेगेटिव है, तो मैं बाकी टेस्ट किए बगैर उसे वैक्सीनेट कर देता हूँ और लिख के पहली विजिट पे ही दे देता हूँ ये इन टेस्टों के साथ। सो अगर मेरे पास ये पेशेंट हो और वो सॉफ्ट डैक ले रहा हो और 2 हफ्ते का गैप आ जाए, तो मैं इलाज रोक देता हूँ। आई डू नॉट बिकॉज ये कहीं नहीं लिखा हुआ, कोई गाइडलाइंस इसको टच नहीं करती, लेकिन एक्सपर्ट्स ये कहते हैं कि 2 हफ्ते के बाद इलाज वैसे ही है जैसे नया शुरू कर। I stop the treatment and ask the patient to come back after 3 months with a PCR. सिर्फ PCR करा के आ जाए। अगर वो नेगेटिव हो गया, वेल एंड गुड, 2 नफल अदा करे और खुशी मनाए। अगर नेगेटिव नहीं हुआ तो अब ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि उसको कंप्लायंस का भी एहसास होगा। उसको बैठा के कंप्लायंस पे लेक्चर दें और दोबारा इलाज शुरू करें। इलाज कौन सा होगा? अकॉर्डिंग टू गाइडलाइंस जो वो ट्रीटमेंट एक्सपीरियंस की बात करते हैं, वो सिर्फ इंटरफ्रॉन, पैग इंटरफ्रॉन या सोफॉस्पाविर ट्रीटमेंट की बात करते हैं। वो कॉम्बिनेशन ट्रीटमेंट की बात नहीं करते। सो जो उसके लिए अलग सेक्शन है कि जिन्होंने सिंगल या मल्टीपल कोर्सेज ऑफ कॉम्बिनेशन ट्रीटमेंट फेल किया है, उनके साथ क्या करना है। सो अकॉर्डिंग टू द गाइडलाइंस, किसी ने भी NS5A इनहिबिटर ले लिया है, जो कि डेक्लेटस्फिर है इस केस में, उनको
डायरेक्ट ट्रिपल रिजीम पे जाना चाहिए, सोफॉस्पविर, वॉक्सिलाप्रविर एंड वेल्पेटास्विर, जो वॉसिवी के नाम से आती है। अब वॉसिवी मिल तो जाती है लेकिन वो महंगी है, 1,20,000 महीने का, अब शायद 1.5 लाख का हो गया है, तो 4.5 लाख 3 माह का कोर्स होगा। सो वो थोड़ा सा इम्प्रैक्टिकल है, लेकिन अगर पेशेंट अफोर्ड करता है तो आप उसे जरूर ऑफर करें। और मेरी प्रैक्टिस ये है कि मैं इनमें राइबाविरिन भी ऐड कर देता हूँ, क्योंकि गाइडलाइंस ये कहती हैं कि अगर इसमें रेजिस्टेंट म्यूटेशंस होंगी तो राइबाविरिन ऐड करनी चाहिए। हम रेजिस्टेंस म्यूटेशंस तो चेक कर नहीं सकते अपने सेटअप में, तो आई ऐड राइबाविरिन। सो वॉसिवी प्लस राइबाविरिन फॉर 3 months। अब ये पॉसिबल नहीं है, पेशेंट गरीब है, तो आपके पास 2 ऑप्शंस हैं। नंबर 1 जो कि बेहतर ऑप्शन है वो ये है कि सॉफ वेल राइबा फॉर 3 months। अगर पेशेंट वो भी खरीद नहीं सकता तो आप सॉफ्ट डैक राइबा उसको दें और उससे कहें कि ये ट्रीटमेंट इस दफा 6 months की होगी। ऑल्दो ये नॉन सिरोटिक है, एप्री स्कोर इज 0.5, अल्ट्रासाउंड नॉर्मल है, प्लेटलेट्स नॉर्मल हैं, सो दिस इज डेफिनेटली नॉन सिरोटिक। लेकिन सॉफ्ट डैक राइबा वही इलाज अगर लेना है तो वो 3 महीने का दोबारा ना ले, क्योंकि वही मरीज 3 माह का दोबारा इलाज लेगा, वही रिजल्ट आएगा तो वो कहेगा आपने तो वही किया था जो पहले ने किया था, सिर्फ राइबाविरिन ऐड की। अगेन इस पे गाइडलाइंस नहीं है, सॉफ्ट डैक राइबा की अब गाइडलाइंस में इंक्लूड ही नहीं होता। ये 2016 के बाद ही सॉफ्ट डैक यूरोपियन और अमेरिकन गाइडलाइन से निकल चुकी है। सो हमारे पास चॉइस यही है, नंबर 1 चॉइस वॉसिवी विद राइबाविरिन फॉर 3 months, नंबर 2 चॉइस सॉफ्ट वेल राइबा फॉर 3 months, और नंबर 3 पुअरेस्ट ऑफ चॉइसेस सॉफ्ट डैक राइबा फॉर 6 months। आपको इस पे कोई गाइडलाइंस नहीं मिलेगी। ये मेरी प्रैक्टिस है जो मैं फॉलो करूं अगर ये इस तरह का पेशेंट मेरे पास आए। आई एम श्योर आप अगर डिफरेंटली भी करते हैं तो गलत नहीं कर रहे, लेकिन गाइडलाइंस के मुताबिक तो वॉसिवी है या सॉफ्ट वेल राइबा है। जी असद। Thank you, sir. Any question in this regard? बाय द वे मेरे स्टोरीज जो हैं कि जिन्होंने थोड़ा इलाज लिया और बंद कर दिया, चाहे वो सॉफ्ट वेल हो विद और विदाउट राइबा या सॉफ्ट डैक हो विद और विदाउट राइबा, जो सबसे बड़ा प्राइज विनर है उसने 12 दिन इलाज लिया था और SPR अचीव हो गया। 1 महीने और 2 महीने वाले तो काफी हैं जिन्होंने इलाज लिया, खुद बंद किया, और जब 3 महीने के बाद मैंने PCR करा के बुलाया तो वो नेगेटिव थे और नेगेटिव रहे 1 साल के बाद भी। सो देयर आर मेनी सक्सेस स्टोरीज। इसीलिए मैंने कहा कि अगर 15 दिन का वक्फा, 2 weeks का वक्फा आ जाए, ये मेरा थ्रेशोल्ड है, इसके बाद मैं इलाज कंटिन्यू नहीं करता। मैं कहता हूँ कि बस इनफ, आप 3 महीने के बाद PCR करें और मेरे पास है। जी कोई आई थिंक क्वेश्चन? इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि हम लोग और ये मैंने बड़ा देखा है कि जो हमारे जितने भी पेशेंट होते हैं, बास का 1 महीना 5 हफ्ते दवाई खाई होती है, तो अगर गैप आ गया है तो यही स्टैंडर्ड इंस्ट्रक्शन है जिस तरह आपने कहा है कि वी जस्ट स्टॉप इट, नो नीड टू रीस्टार्ट। 3 महीने के बाद देखें कि उसका PCR अचीव हुआ है कि नहीं हुआ। ये जरूर मैं करता हूं कि अगर पेशेंट सिरोटिक है, एप्री ज्यादा है या आउटराइट सिरोसिस का है, तो मे बी जब भी आए तो हम महीने का वक्फा तो मैं फिर भी देता हूं कि जस्ट टू शो कि अगर वायरस है तो फिर 3 महीने वेट ना करें और उसको हम रीस्टार्ट कर लें। एक क्वेश्चन है इमरान की तरफ से कि डू वी नीड क्वांटिटेटिव PCR इन हेपेटाइटिस C एज डन हेयर?
तो इमरान, इसका जवाब तो मैं आपको दे देता हूँ, क्योंकि अब जितने भी पीसीआर होते हैं ये क्वांटिटेटिव ही होते हैं। और इंटरेस्टिंग चीज ये है कि जब पहले भी क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव की बहस होती थी तो उस वक्त भी वो क्वांटिटेटिव कहते थे, सिर्फ पैसे कम थे तो वो पॉजिटिव नेगेटिव रिपोर्ट दे देते थे, लोड नहीं देते थे। कम से कम चुगताई लैब की हद तक तो मैं अच्छी तरह जानता हूँ, क्योंकि वो सब का बैक एंड पे क्वांटिटेटिव ही रन होता था। और अभी भी हर लैब में क्वांटिटेटिव ही रन होता है। तो आपको क्वालिटेटिव तो अब ऑर्डर ही नहीं करना चाहिए। बाय डिफॉल्ट एवरी पीसीआर इज क्वांटिटेटिव। और एक जो सवाल है कि वो सेवी ड्यूरेशन विद रिबाविरिन, अल्ताफ साहब आप इसके ऊपर आपने शायद जिक्र किया था, दोबारा आप थोड़ा सा बता जी दें। जी जी। वॉसेवी की ड्यूरेशन इज 3 months with ribavirin in this particular patient। हालांकि गाइडलाइंस ये कहती हैं कि राइबाविरिन ऐड ना करें, मैं ये कहूंगा कि करें। उसकी वजह ये है कि हम रेजिस्टेंस म्यूटेशन चेक नहीं कर रहे, और वो कहते हैं कि अगर Y93H म्यूटेशन है तो फिर दे दें राइबाविरिन, नहीं है तो फिर राइबाविरिन ना दें। जब हम चेक ही नहीं कर रहे तो हम कैसे इस पे बात कर सकते हैं। सो आई वुड सजेस्ट के ऑलवेज यूज राइबाविरिन इन वॉसिवी फॉर सच केसेस। और ड्यूरेशन हमेशा 3 माह होती है, एक्सेप्ट उन पेशेंट्स के जो मल्टीपल थेरेपीज ले चुके हो और कंपनसेटेड सिरोटिक हो। ऑफ कोर्स इसमें प्रोटीएज इनहिबिटर है, सो डीकंपनसेटेड सिरोसिस में तो ये कंट्राइंडिकेटेड है। सो कंपनसेटेड सिरोटिक, मल्टीपल थेरेपीज, उसने सॉफ्ट डैक राइबा भी ले ली, सॉफ्ट वेल राइबा भी ले ली, अब आपके पास तीसरे ट्रीटमेंट के लिए आया है, तो वहां पर समटाइम्स 6 months की ट्रीटमेंट हम रेकमेंड करते हैं। ये मल्टीपल फेल्ड थेरेपीज की बात कर रहे हैं, वरना अदरवाइज 3 months विद राइबाविरिन इज मोर देन एनफ। Okay. Any question in this regard? ये इन्होंने क्वेश्चन बड़ा अच्छा पूछा है। आपकी बात असद बिल्कुल सही है कि बैक एंड पे क्वांटिटेटिव तो किया होता है, चाहे वो उसका जवाब दें या ना दें। लेकिन अगर आप कमर्शियली पूछ रहे हैं, आस्क इफ यू आर सेंडिंग अ टेस्ट, तो मरीज के 3,000 रुपए बच जाते हैं। सो अगर मैंने कमर्शियली भेजना ही है आगा खान को या शौकत खानम को, तो आई वुड आस्क फॉर क्वालिटेटिव ओनली, क्योंकि वो ना मिले मुझे क्या फर्क पड़ता है, मैंने तो टेस्ट को नेगेटिव करना है, चाहे वो 10,000 है या 10 लाख है, मुझे क्या फर्क पड़ता है। सो लेकिन आपकी बात सही है कि कीमत कम होगी, मरीज को वो ऑफर जरूर करेंगे। अभी रिसेंटली एक मेरा मरीज एक लैब में गया, उन्होंने कहा कि डॉक्टर ने क्वालिटेटिव लिखा है, आप 3,000 और दे दें तो आपको क्वांटिटी भी पता चल जाएगी। तो वो बेचारा हाकता हाकता मेरे पास आया कि जी वो क्वांटिटी भी करते हैं 3,000 एक्स्ट्रा देकर। तो मतलब ये स्टोरीज हैं जो कि चल रही हैं। बेसिकली यू नीड आपने वायरीमिया देखना है। हो तो रहा होता है क्वांटिटेटिव, लेकिन अगर आप कमर्शियली करा रहे हैं तो वो 3,000 ऊपर से लेकर फिर क्वांटिटी डिक्लेयर करेंगे, वरना वो क्वालिटेटिव दे देंगे। जी, मैं यहाँ पे एक और अपना पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर कर लूँ, स्पेशली जो हमारे ट्रस्ट के पेशेंट्स हैं। जब हम एसपीआर कराते हैं, यूजुअली हम पीसीआर ही करा रहे होते हैं, तो अक्सर लोग बहुत ही थकी हुई लैब से करा के आते हैं और वो पॉजिटिव निकल आता है। अब समटाइम्स वायरल लोड होता है, समटाइम्स नहीं होता। मैं उसके एलएफटी फिर कराता हूँ, और अगर उसके एलएफटी 100% नॉर्मल है, एएलटी 19 है, एएसटी 22 है या 18 है, तो मैं एक दफा अपनी मर्जी की जगह से पीसीआर जरूर रिपीट कराता हूँ। और यू विल बी सरप्राइज्ड कि 50% ऑफ द टाइम पीसीआर नेगेटिव हो। अगर उसके एलएफटी ज्यादा है, चाहे वो 45 हो या 50 के करीब हो, तो ठीक है, देन आई मे err ऑन द साइड ऑफ द ट्रीटमेंट, मान लूंगा। हाँ, क्योंकि मेरी गट फीलिंग है कि बहुत सारी जो लैब्स हैं, जो पुअर क्वालिटी लैब्स, आई कैन से, आई कांट नेम एनीबॉडी, वो शायद एंटी-एचसीवी करती हैं, उसके ऊपर ही पीसीआर को पॉजिटिव कर देती हैं, और शायद वो पीसीआर करती ही ना हो। तो एसवीआर के केस में इस चीज को प्लीज इंश्योर करें
कि LFT कहाँ पे है, और स्पेशली अगर लैब, अगर बहुत अच्छी क्वालिटी की लैब है लेबर से कि आप उसको, अब शौकत खानम की रिपोर्ट आई है या इवन चुगताई लैब, आगा खान, बाकी, तो आप वो बिल्कुल वो ठीक होगी। लेकिन LFTs को जरूर देखें। अगर ट्रांस एमिनाइजेस 100% नॉर्मल है कोई चीज़ है, तो आई विल प्रॉब्ली रिपीट PCR। और मुझे बहुत दफा आई एम प्रूवन राइट कि वो SVR अचीव्ड होता है। वो PCR बड़ी बड़ी वैल्यूज होती हैं, 25,000 यूनिट और 1 लाख यूनिट, बट यू नो इट जस्ट टर्न्स नेगेटिव। वेरी ट्रू, वेरी ट्रू। सो अनदर मैसेज इज के आपने वैसे भी शुरू करनी है, 5 लाख रुपए का इलाज देना है, तो एक 5,000 या 3,000 या 7,000 का टेस्ट जरूर करा ले इफ इन डाउट। अगर आपका टेस्ट अनरिलायबल लैब से है। देखिए, जो नॉर्मल लिवर वाले मरीज हैं, जिनका, अगर ये मरीज जो अभी केस नंबर 2 प्रेजेंट किया है, ये 15 दिन का गैप ना देता तो ऑलमोस्ट 100% सक्सेस रेट ऑफ ट्रीटमेंट है। आप जो मर्जी फेंक दें उस पर, सॉफ्ट डैक दे दें, सॉफ्ट वेल दे दें, कुछ भी दे दें, ऑलमोस्ट 100% रिस्पॉन्स रेट है। तो आपको ये डाउट होता है कि ये टेस्ट दोबारा पॉजिटिव कैसे आ गया, ये लेबोरेटरी कहाँ से हुई है। सो ऑलवेज थिंक कि कहीं कोई रॉन्ग रिपोर्ट का चांस तो नहीं है, एंड डोंट हेसिटेट, जैसे असद साहब ने कहा, टू गेट वन टेस्ट जस्ट PCR क्वालिटेटिव फ्रॉम अ रिलायबल लैब, ताकि वो 5,000 7,000 में आपका ये मसला रिजॉल्व हो जाए और आप 5 लाख रुपए का इलाज देने से पहले अपने आप को जस्टिफाई कर सकें कि ये 5 लाख का आपने जाया नहीं किए। थैंक यू। Okay, any other question? Otherwise, we can. ठीक है सर, थैंक यू। किरण, ओवर टू यू। आप श्योर डॉक्टर सर। जैसा कि आप लोगों से रिक्वेस्ट किया डॉक्टर सर ने, वी हैव हमारा इरादा है पैलिएटिव केयर का एक क्लोज ग्रुप चलाने का। इफ यू आर इंटरेस्टेड इसको ज्वाइन करने के लिए, तो आप प्लीज उजैर से कांटेक्ट कर सकते हैं। उजैर का नंबर और ईमेल एड्रेस जो है बैनर के ऊपर है। और इसके अलावा वी डू इनकरेज कि आप अपने केसेस लेकर आएं, और अगर आपको हम टेम्पलेट फराहम कर सकते हैं, और अगर अदरवाइज अगर नहीं तो हम आपके लिए केसेस प्रेजेंट भी कर सकते हैं। So we are grateful and thankful to Pakistan Society of Hepatology and Ferozens Laboratories Limited for the unrestricted educational grant, and our team at PARSA Trust and PARSA ECHO Pakistan. Allah Hafiz. Uzair, you can call off the meeting, please. Sure, ma'am. Allah.